أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yesterday we have carried out the meeting. In that meeting, we have discussed about the electronic configuration and the isolation, that is separation of lanthanides. How to write the electronic configuration of lanthanides and how to separate lanthanides from each other. That is by means of ion exchange method we have discussed. Okay, this occurrence, isolation of lanthanides, electronic configuration, and oxidation state. Oxidation state we have discussed. Now, ionic radii and lanthanide contraction and its consequences means effects. How lanthanide attraction it affects the properties of the lanthanides and other elements, how they are affected. That will be discussed here. Now, let us see what is lanthanide contraction. Now, as the name suggests, contraction means reduction in the size. We see here, this is the atomic number. This is the ionic radius. Now, as we go from lanthanum to lutetium, there is decrease in the atomic radius. Atomic radius is going to decrease. This decrease is steady, means permanent. There is permanent decrease. So, this constant decrease in the ionic radius or atomic radius of the lanthanides from lanthanum to lutetium, this is called as the lanthanide contraction. Now come to definition. On moving along the lanthanide series, when we move along the lanthanide series from lanthanum to lutetium, what happened there? There is decrease in the atomic radius. Atomic radius or atomic radii, it decreases. So this decrease in the atomic radius this decrease in the atomic radius, it is termed as the lanthanide contraction. Okay. In the lanthanide series, as we move from, this is the lanthanum. We are starting from here 57 to 71. This is the first element, lanthanum 57, 58, 59, 60, 61 up to 71. So as we move across the period here, this is the sixth period. As we move from lanthanum to lutetium, what happens? Atomic radii or ionic radii, it decreases. There is constant decrease in the atomic radius. This decrease in the atomic radius or ionic radius, it is called as lanthanide contraction.
Okay, here this chart is shown how atomic radius or ionic radius decreases. Ionic radius or atomic radius, it is measured in terms of picometers. Here we have measured in terms of picometers. So from lanthanum to lutetium, we are going to see here there is decrease 116, 114, 113, and so on up to 98. So there is constant decrease in the atomic radius or ionic radius from lanthanum to lutetium. This decrease in the atomic radius or ionic radius, it is called as the lanthanate contraction. Okay. Now there is decrease in the atomic radius. Now as the atomic number increases, each electron which is being added, what happens? Electron, it is added to 4f orbital. As the atomic number increases, each succeeding element contains one more electron in the 4f orbital. As we go from left to right, at each step, atomic number will increase by 1 unit. At the same time, atomic number increases by 1 unit means 1 electron it is added in the 4f orbital and 1 proton in the nucleus. ठीक है, जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर में ऐड होता है. ठीक है, उसी के साथ क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर भी ऐड होता है. ठीक है, दोनों चीजें एक साथ होती है. लेकिन आगे जाकर के देखते हैं, f ऑर्बिटल आर डिफ्यूज्ड. डिफ्यूज में स्कैटर, वो फैले हुए होते हैं. डिफ्यूज में फैले हुए होते हैं. So the 4f electrons are ineffective in screening the outer electron from the nucleus, causing imperfect shielding. जैसे d orbitals देखते हैं, d orbitals के अंदर में जो होता है ये shielding effect अच्छा खासा होता है, effective shielding is there. लेकिन f electrons they are diffused. f orbital का शेप कैसा है? फैले हुए होते हैं और ये डीपली बरीड होते हैं. 4f orbital they are deeply buried. तो इसके वजह से क्या होता है? जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है. इसलिए हम बोलते हैं कि 4f इलेक्ट्रॉन्स आर इनएफेक्टिव इन स्क्रीनिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है. ठीक है, क्या रीजन है इसका? एक तो डिफ्यूज है और डीपली बरीड है. f orbital are diffused and deeply buried. Therefore 4f electrons they are ineffective in screening the outer electrons. तो outer electron जो है, बाहर के इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर ये बीच के इलेक्ट्रॉन जो 4f इलेक्ट्रॉन है इतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं एक्सर्ट कर पाते जितना d इलेक्ट्रॉन्स एक्सर्ट करते. ठीक है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन दे आर डीपली बरीड और डिफ्यूज्ड है. ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड है और डीपली बरीड. ये दो रीजन के वजह से आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर शील्डिंग जो होती है कम होती है. ठीक है, एज ए रिजल्ट देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द न्यूक्लियस अट्रैक्शन. इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द न्यूक्लियस अट्रैक्शन. न्यूक्लियस अट्रैक्शन ग्रेजुअली कम होना शुरू होता है फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया. ठीक है, तो वहां पर ग्रेजुअली इंक्रीज इन द न्यूक्लियस अट्रैक्शन. देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द न्यूक्लियस अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. शील्डिंग इफेक्ट जो होता है कम होता है. शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से
क्या होता है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता हुआ चला जाता है, इसलिए बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अट्रैक्टेड इनवर्ड्स, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली ग्रेजुअल डिक्रीजिंग साइज ऑकर। इसलिए क्या होता है, जो एटॉमिक रेडाई है या आयोनिक रेडाई ये कम होती चली जाती है। जैसा इससे पहले बता चुके हैं किस तरह से ये सारी प्रोसेस होती है। जैसे ये सपोज हमारा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, यहाँ पर से सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, सपोज ये 4f इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये डीपली बरीड है, इसलिए ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर ये शील्डिंग इफेक्ट कम होता है इनका, ये डीपली बरीड है और डिफ्यूज्ड है, उसकी वजह से ये जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है 4f इलेक्ट्रॉन्स है, ये जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर डिक्रीज करना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी स्क्रीन यानी कम करना, ये जिस तरह से कम करना चाहिए वो कम नहीं कर पाते। रीजन क्या है, दो रीजन है, एक तो डिफ्यूज है शेप और दूसरा ये डीपली बरीड है। डीपली बरीड होने के बाद वजह से इसके ऊपर जो बीच में स्क्रीन लाना चाहिए, जो शील्डिंग इफेक्ट होना चाहिए उतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। तो एग्जैक्टली इफेक्ट क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन दे आर अट्रैक्टेड इनवर्ड्स, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, यानी टोटल इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये उसका एटॉमिक रेडियस, ये आयनिक रेडियस हम देख रहे हैं, चार्ट है Ln3 ट्राई पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, ये 116 114 ये हम बता चुके हैं पहले, फिर एक बार आपको बता रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इस तरह से कम होना शुरू होती है, कम होती चली जाती है। उसके असरात क्या होते हैं, the poor shielding effect of f electrons is the cause of lengthened contraction। lengthened contraction क्यों होता है, उसकी वजह क्या है, कॉज क्या है, रीजन क्या है, the poor shielding effect of f electrons। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है पुअर होता है, कमजोर होता है। असरात क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, there is close resemblance between 4d and fd transition stages। 4d एलिमेंट्स और 5d एलिमेंट्स इनके प्रॉपर्टीज एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन 3d एंड 4d ट्रांजिशन सीरीज। आगे जाकर हम ये देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d ट्रांजिशन सीरीज ये 3d और 4d से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स की साइज एक जैसी हो जाती है, तकरीबन साइज के अंदर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रह जाता है, प्रॉपर्टीज एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए उनका सेपरेशन एक मुश्किल तरीन, एक डिफिकल्ट जॉब बन जाता है। सो देयर इज स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक रेडाई और एटॉमिक रेडाई अलोंग द सीरीज। यहाँ पर दिख रहा है आपको लैंथेनम, सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, क्रोमोथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इरिबियम, थ्यूलियम या टेरिबियम और यहाँ पर ल्यूटेशियम। एटॉमिक रेडाई या आयनिक रेडाई, क्रिस्टल रेडाई भी यहाँ पर डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, स्टेडी कांस्टेंट डिक्रीज होती चली जा रही है। तो व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ दिस लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, इनके असरात, इफेक्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है इनका। इफ देयर वेर नो लेंथेनाइड्स आफ्टर
नो लेंथेनॉन्स आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनम के बाद दूसरे एलिमेंट्स नहीं होते तो क्या होता, ये बता रहा है। इफ नो एलिमेंट्स आर इंटरवेन बिटवीन लेंथेनम एंड हाफनियम, लेंथेनम के बाद क्या कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सीरियम, 71 तक जा रहे हैं, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, हाफनियम 72 के ऊपर। तो अगर ये लेंथेनम के बाद लेंथेनम से बीच में एलिमेंट नहीं होते, 14 एलिमेंट नहीं होते, तो क्या होता, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाफनियम एंड फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी डिफरेंट। तो दोनों के प्रॉपर्टी के अंदर में डिफरेंस होता है, ठीक है। लैंथेनम एंड हैफनियम एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ हैफनियम, और उसके आगे आने जो एलिमेंट्स हैं इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते, अलग अलग होते, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट टू बी फाउंड, ठीक है। सो नॉर्मली इन द सेम ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर हम जब जाते हैं, ग्रुप यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा उसके साथ में क्या होता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है ग्रुप के अंदर में, ठीक है। पीरियड के अंदर में वो डिक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप के अंदर में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं अब तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर तो दोनों में इंक्रीज होने हैं, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद ये टेरबियम एंड ये स्कैंडियम एंड ये टेरबियम, यहाँ पर देख रहे हैं लैंथेनम टू ये आगे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, जिरकोनियम, ठीक है, जिरकोमिनियम एंड क्रोमियम, ठीक है, मोलिब्डेनियम, इस तरह से। बट ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स जस्ट फॉलोइंग हाफनियम ऑनवर्ड्स आर क्लोज टू द एलिमेंट्स जस्ट अबव देम, हाफनियम के बाद जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनके जो साइज है टू द एलिमेंट, but due to lengthened contraction, atomic radii of the element just following hafnium and onwards, they are close to the element just above them in the respective group. तो ग्रुप के अंदर में ऊपर के जो भी एलिमेंट्स है उनसे उनकी साइज उनसे मिलती जुलती है, ठीक है। एंड these elements are very much similar in the properties, उनके प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं, एंड दे आर ऑफन डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसलिए उनको सेपरेट करना मुश्किल काम बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जिरकोनियम एंड हाफनियम, नोबेलियम एंड टेंटेलम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, और ये आगे के सारे एग्जांपल्स हैं, सिल्वर एंड आयरन, ठीक है। दैट इज व्हाई second and third rows of d block transition metal atoms are quite close in properties. Second और third row of d block elements जो है they are close in properties, while the properties of first and second rows of d block elements they do not show so close similarity, इनके अंदर सिमिलैरिटी उतनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है हम, ये ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, ठीक है, ये सिक्स्थ ग्रुप है और सेवंथ ग्रुप है, ये सिक्स्थ ग्रुप के अंदर हम चल रहे हैं। तो यहाँ से ये स्कैंडियम के बाद ये टेरबियम जब आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई, टिटेनियम से जिरकोनियम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, वेनेडियम से नोबिलियम, क्रोमियम से ये मोलिब्डेनियम, और ये मैंगनीज से टेक्नीशियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स की तरफ जब हम जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक ग्रुप के अंदर में एटॉमिक साइज इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है हमको कि लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद हाफनियम, हाफनियम के बाद ये जो एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये टेरबियम और लैंथेनम प्रॉपर्टीज एक जैसे हो जाते हैं, जिरकोनियम हाफनियम प्रॉपर्टीज एक जैसे, नोबेलियम टेंटेलम प्रॉपर्टीज एक जैसे हो जाती है, मोलिब्डेनियम और ये टंगस्टन प्रॉपर्टीज एक जैसे हो जाती है,
ठीक है, कई की वजह से होते हैं, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, hence these elements are very much similar in properties। ये अच्छी तरह से आपके समझ में आएंगे, ये पॉइंट आपके समझ में आएंगे। दे आर क्लोज, hence these elements are very much similar in the properties। इन द ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के अंदर में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ, लेकिन बट ड्यू टू लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट विच आर हॉफनियम ऑनवर्ड्स, हॉफनियम के बाद के जो एलिमेंट है दे आर क्लोज टू द एलिमेंट जस्ट अबव देम, उनके ऊपर जो भी एलिमेंट है उनसे उनकी साइज उनकी मिलती जुलती है, सिमिलर है। हेंस दीज एलिमेंट्स आर वेरी मच सिमिलर इन द प्रॉपर्टी। उनके प्रॉपर्टीज कैसे है, ऊपर जो एलिमेंट्स है उनके जैसे हैं। क्यों हो रहा है, साइज एक जैसी क्यों हो रही है, कि जो साइज ग्रुप के अंदर में इंक्रीज होना चाहिए, यहां से यहां जाने के बाद जो साइज इंक्रीज होना चाहिए, साइज इट शुड इंक्रीज एक्चुअली। यहां से जब हम इधर जा रहे हैं, यहां से यहां साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये इंक्रीज हो रही है यहां से यहां जाने के बाद, अब यहां से इंक्रीज हो रही है, लेकिन लेंथेनम से हाफनियम की तरफ जब जा रहे हैं तो ये इंक्रीज जो हो गई थी, यहां से यहां जो इंक्रीज हो गई थी ये डिक्रीज हो गई थी। डिक्रीज क्यों हो गई, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन की। ये जो इंक्रीज थी यहां पर हो गई, जो यहां से यहां पर आने में जो इंक्रीज हो गई थी, तो यहां से यहां जब जा रहे हैं तो ये डिक्रीज, ये इंक्रीज को ये डिक्रीज ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये जो इफेक्ट था यहां से यहां आने में, जो बढ़ना चाहिए था तो वो बढ़ा यहां आने में, लेकिन साथ में ही इधर से इधर आने में वो डिक्रीज भी हो गए, यानी कैंसिल हो गए। इसलिए देखते हैं कि हम ये एलिमेंट्स, ये टेर्बियम, लेंथेनम, ये प्रॉपर्टीज एक जैसे, ऊपर के एलिमेंट्स ये दोनों की साइज मिलती जुलती है, इसलिए ये एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हमने देख लिया, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद है एटॉमिक रेडाई, ये एटॉमिक रेडाई ऑफ सम एलिमेंट्स इन पिकोमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, ये लेंथेनम है 188, ये 180, 165, 156, 159 सिमिलर साइज आ रही है। टेंटेलम 143, 143, 137 टंगस्टन, मोलिब्डेनियम 136, मोलिब्डेनम आ रहा है और ये टंगस्टन, टेक्नीशियम 132, 137, इस तरह से। ठीक, यानी ये साइज जो हो रही है तकरीबन एक ही साइज हो रही है, ये साइज एक जैसी होने की वजह से प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती है, और प्रॉपर्टीज जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करना, आइसोलेट करना एक डिफिकल्ट जॉब बन जाता है। ठीक, चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। densities of hafnium and succeeding elements are higher than they would otherwise have been। हाफनियम है और उसके बाद के जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है इनकी जो डेंसिटी है ये क्या है, हाइयर, ज्यादा है, देन दे वुड otherwise have been। डेंसिटी ऑफ हाफनियम एंड सक्सीडिंग एलिमेंट्स ये ज्यादा है than they would otherwise have been। ठीक है, thus the densities of second row of D transition series are only slightly higher than those of first row। तो densities of second row, इनके जो densities है ये थोड़े से slightly higher है than those of first row से ज्यादा है। ठीक है, while density of third row of transition series is nearly 2 times the density of corresponding second row of D transition series। ठीक है, पहला क्या है, the densities of first row of D transition series, densities of second row of D transition series are slightly higher, ये थोड़े से बड़े हुए, कैसे, than those of first row, फर्स्ट रो से थोड़े से बड़े हुए डेंसिटी, लेकिन थर्ड रो के अंदर में जा रहे हैं ट्रांजिशन सीरीज, इट इज नियरली 2 times
then the densities of corresponding second row of d transition series. ये काय की वजह से हो रहा है? रीजन क्या है इसका? फिर एक बार इसका रीजन है लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, जैसे हम देखते हैं आगे के स्लाइड के अंदर में. ये दिख रहा है आपको, जेटेरियम ये है कि थोड़े से बड़े वैल्यूज है 4.5, 3, 4.5, 6.5, 6.5, 8.5, 8.6, ठीक है, 7.2, 10.2, ठीक है. लेकिन ये फर्स्ट सीरीज हो गई, ये हमारी सेकंड सीरीज है. और थर्ड सीरीज के अंदर जब हम जा रहे हैं तो वैल्यू तकरीबन डबल दिख रहे हैं आपको टेरिबियम से. ये तो इतना एग्जैक्ट डबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं 6.5 जिरकोनियम, हाफनियम 13.1 हो जा रहा है. ठीक है, यहाँ नोबेलियम 8.6 है, एग्जैक्टली इसके डबल टेंटेलम हो जा रहा है. मोलिब्डेनम 10.2, तो ये टंगस्टन तकरीबन 20 की तरफ जा रहा है. टेक्नीशियम 11.5, तकरीबन 21 की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो डेंसिटीज क्या हो जा रही है यहाँ पर? डबल हो जा रहा है. डेंसिटीज डबल होने की वजह क्या है? दिस इज द कॉज, दिस इज ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है. ठीक है, नाउ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हाफनियम, रेडियम एंड एक्टिनियम are higher than they would have been otherwise. Melting points of hafnium, radium और actinium ये बहुत ज्यादा है. कैसे? Then they would have been otherwise. अगर ये इफेक्ट नहीं होता तो इससे भी ज्यादा होती वैल्यू. अगर लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो ये वैल्यू इससे भी ज्यादा होती. लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से थोड़े से हाइयर जितने होना चाहिए उतने हाइयर नहीं. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको बेरियम है, बेरियम सीरियम ज्यादा है बेरियम से. टेरिबियम इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है लेंथेनम से. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि बेरियम, ठीक है, उसके बाद रेडियम 960, लेंथेनम 1160, ये 1050, थोरियम 2100, हाफनियम 2600. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सम एलिमेंट ऑफ 4 सक्सेसिव ग्रुप्स, उसके आगे के जो ग्रुप्स उसका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हाफनियम, रेडियम एंड एक्टिनियम ये हाइयर है देन दे वुड हैव बीन अदरवाइज. इससे भी ज्यादा हो सकते थे. अगर लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो ये वैल्यूज इससे भी ज्यादा हो सकती. ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बताए हैं. हाफनियम के बाद 72 आ रहा है हाफनियम. रेडियम तकरीबन 80, कुछ 89, 88 कुछ आ रहा है. उसके बाद ये 90 की तरफ जा रहा है तकरीबन. ठीक, now ionization potential. Now in the subgroup ionization potential generally show decrease. ग्रुप के अंदर में क्या होता है, सब ग्रुप के अंदर में क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जनरली डिक्रीज होता है. लेकिन बट इन टंगस्टन Z इज इक्वल टू 73, एटॉमिक नंबर 73, नॉट हाफनियम, while value for tantalum is uncertain and the succeeding elements right to lead.
right up to lead, Z is equal to 82. The ionization potential are higher than in the corresponding elements above it. ठीक है, ये टंगस्टन और उसके बाद के जो एलिमेंट्स है कहां तक, लेड अप टू 82. The ionization potentials are higher than in the corresponding elements above them. corresponding elements से जो देख रहे हैं हम, ये ionization potential क्या है, ज्यादा है. फिर कहां पर है ये, टंगस्टन देखते हैं, ये टंगस्टन. ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, decrease in the group, subgroup ionization potential generally shows decrease होती है सब ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल, बट इन टंगस्टन इज इक्वल टू 73 एंड नॉट हफनियम. हफनियम की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं है, हफनियम और टेंटेलियम. और उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं लेड तक इज इक्वल टू 82. द आयनाइजेशन पोटेंशियल आर हायर देन इन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अबव देम. करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उससे उनके वैल्यूज ज्यादा है. जैसा देखते हैं हम, Z is equal to 73. कहाँ है टंगस्टन, ये ऊपर के वैल्यूज है, उससे ये आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है. 73 है, 79 है, 7.5 है, 8.7 है, यहाँ पर 77.7, 9. जबकि ये वैल्यूज क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए, सब ग्रुप के अंदर में डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रीज हो रही. इंक्रीज के लिए रीजन क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते चला जा रहा है हाफनियम से लेड की तरफ जब हम जा रहे हैं. ये भी इफेक्ट का है, दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, occurrence of ytterbium with heavy lanthanides. तो ytterbium जो है ये क्या होता है, हेवी लैंथेनाइड्स के साथ में पाया जाता है. ठीक, इसके लिए भी रीजन क्या है, रीजन वही है, द साइज ऑफ ytterbium इज स्मॉलर देन lanthanum इन द सेम ग्रुप बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी जो साइज है ये lanthanum से कम होती है इन द सेम ग्रुप बिकॉज ऑफ lanthanite contraction. The size of subsequent lanthanum regularly decrease होती चली जा रही. Therefore, their outer configurations are similar. About holmium and erbium, the size of ytterbium is reached. ठीक है, this similarity in ionic charge, size and outer electronic configuration for the occurrence in nature of ytterbium along with heavier lanthanide. साइज उनकी तकरीबन एक हो जाती है, हेवियर लैंथेनाइट के साथ में साइज जाकर मिल जा रही है. ठीक है, ठीक है, ytterbium की और ये जो आने वाले लैंथेनाइट्स की हेवियर लैंथेनाइट के साथ में जाकर साइज मिल जा रही है. ठीक, इसलिए क्या हो रहा है, ytterbium it occurs with heavy lanthanide. The crystal structure, chemical properties and solubilities of ytterbium compounds are close to heavier lanthanides. It makes their separation difficult. इसके वजह से क्या होता है, ytterbium का ये separation difficult हो जाता है. Ytterbium is thus practically a member of heavier lanthanum and therefore called as ytteria earths. ठीक है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट है बेसिसिटी ऑफ आयंस. Because of regular contraction from member to member for tripositive ions, the properties, that is basic character change, it changes regularly though slightly. आहिस्ता आहिस्ता कम होती है लेकिन कम होती है बेसिक कैरेक्टर. रेगुलर डिक्रीज हो रही है कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ ट्राइपॉजिटिव आयंस, सो बेसिक प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है रेगुलरली, कम है लेकिन रेगुलर चेंज जो हो रहा है, दिस रिजल्ट्स इन एप्रिसिएबल डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर. ये फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर
दोनों के अंदर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? लेंथोनेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है? दिस स्लाइट रेगुलर चेंज that is in the solubility of salts is made used in the separation of lanthanones। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ lanthanones करते हैं। बेसिसिटी में बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू डिक्रीज इन द ऑर्डर। डिक्रीज इन द ऑर्डर हो रही है बेसिसिटी के अंदर में। बेसिसिटी के अंदर में ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मे बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द ऑर्डर। ये डिक्रीज हो रही है बेसिसिटी ऑर्डर जो एक्सपेक्टेड है हमारा लैंथनम, सीरियम, प्लास्टिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम। इस तरह से ये चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसके लिए भी? बेसिसिटी ऑफ आयंस, इनके अंदर में ये जो ऑर्डर है ये भी काय की वजह से ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज क्यों हो रही है? दिस इज ड्यू टू lengthened contraction। okay, if you have any difficulty you may ask here। This chapter is No, over sir. this is the last bit from the lanthanides। ठीक है, ओके सर। सर चैप्टर का पीडीएफ मिल सकता है ग्रुप पे? हाँ देखिए, पीडीएफ तो नहीं मिलेगा इसका, मैं क्या बोलते हैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। ठीक है। वो भेजना हो नहीं रहा है मुझसे, तो भेज दूंगा आपको सब चैप्टर के। ये दूसरा चैप्टर है, पहले के भी चैप्टर के आपको ये क्या बोलते हैं, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है पीपीटी की वो भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक, आप रेगुलर स्टडी करते चले ओके जाइए। सर। कैसा होगा, अभी से थोड़ी स्टडी करते चले जाएंगे तो आपके लिए लास्ट में ज्यादा बर्डन नहीं आएंगे, नहीं तो एग्जाम के Yes, टाइम पे sir. फिर आपके ऊपर बर्डन आया, परेशान हो जाए। ठीक है, तो थोड़ी सर वो रिकॉर्ड बुक का क्या करना है? रिकॉर्ड बुक के लिए दूसरे टाइम है, ग्रुप पे जैसे टाइम हम है हमारे पास। रिकॉर्ड बुक के लिए अभी टाइम है। अभी हालात कैसे बनते हैं, प्रैक्टिकल चालू भी हो सकते हैं, आज चालू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तो हमारा फाइनल एक ही होना है। Yes. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल नहीं, तो प्रैक्टिकल एक ही होना है, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। आपको उसके बारे में चिंता करने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो फिक्र करने की जरूरत है थियरी की जरूरत करने की। और प्रैक्टिकल में कैसा होता है, हम कम इसके साथ, कम सिलेबस के साथ में भी, जैसे अगर मैं 4 प्रैक्टिकल लेकर के वो 4 प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में रख सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मैं 2 चैप्टर लेके 2 चैप्टर एग्जाम में पूछ नहीं सकता। थ्योरी में आप पूछ सकता हूँ क्या मैं? ये ऑप्शन मेरे पास नहीं, पूछ सकते। ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे पास पूरा ऑप्शन। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल हम रख सकते हैं और डायरेक्ट वो 4 प्रैक्टिकल हम एग्जाम में रख सकते हैं। और वो 4 प्रैक्टिकल के लिए 4 दिन आ गए तो अब काफी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल के बारे में आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, थ्योरी के आप ज्यादा से ज्यादा फिक्र कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।